Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are fine, happy, healthy, and inshallah wealthy too, because your journey of chartered accountancy has been started. So welcome you here. So I say you welcome to you all from the platform of SBIL. I hope you all are fine. And this is first class today. So let me introduce myself first. I'm Saghir Muhammad. I'll be teaching you PRC 1 and PRC 5 as well. My dear students, this is our 9th batch to whom I'm teaching PRC 1 and 5 here from the platform of SBIL. Other than SBIL, I've been teaching with Alhamd for years and years. I've been teaching with ARTT. I've been teaching with KNS. I've been teaching with TMUC, the Roots College. So I've been teaching to the chartered accountancy since long, as well as I've been teaching with ACCA and ICMAP. So all different institutions I've been teaching. Apart from this, I've been attached with a number of universities at Karachi here, at Institute of Business Administration, IBA, Institute of Business Management, IOBM, CBM, and MA Jinnah University, Iqra University, BAF Keat University, and so on, and Karachi University Business School, KUBS. So different institutions have been attached. So this is a little bit about myself. And I did my first MBA from IBA and Institute of Business Administration. Then I did my MS from Zabist. And then I did my MS MPhil from Hamdard University. And I'm doing PhD right now. And the journey of study with PhD is going on. So this is like all about myself, my teaching and training. So I've been not only in teaching involved, I've been involved in corporate sector as well as I've been involved with the in the trainings as well. So this is all about me, myself. So right now there are 31 participants with me. So I would like to know you people I would like to know about you people, that what you have done and what's like what is your so far achievements, what are the achievements. So I would like to invite you people one by one so that I would like to know. So first of all, I would like to know the people, those who are having any background of any studies from convent schools. Anybody from convent schools? St. Michael's, St. Joseph, St. Pat's, or like Mount Parsi or Karachi Grammar, or like these kind of schools? Anybody here? Okay. Anybody from A levels, O levels background? Fatma, would you please? Okay. Okay. Other than Musa Raza, is there anybody? Okay. So my dear students, this was a little introduction about you people. I'm very happy. It's a good strength. ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाया.
I'm happy there are some students, they are from A levels and O levels. There are some people, they are from convent schools, from St. Patrick's. There are some people, there are many people from, they have percentage 80 plus, and even there is one or two people, students, they have 90 plus percentage. So I'm really happy, mashallah, mashallah, it's a good stuff, and like great class I'm teaching. And I pray for everybody that inshallah just dream ke saath aap yahan aaye hain. Inshallah your dreams will be accomplished. The day come inshallah in the first attempt, inshallah पहली ही attempt के अंदर आप अपना जो है वो इन papers को inshallah qualify कर लेंगे. My dear students, from the platform of SBIL, we welcome you all. हम आपको सिलानी की स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप SBIL से खुशामदीद कहते हैं. और आपसे पहले हमारे 8 बैच अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है अपनी कामयाबी के सफर पे हैं. और बहुत सारे बच्चे हमारे PRC क्वालिफाई करके CAF 1 और फिर CAF 2 तक पहुंच चुके हैं. और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि जिनकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई है और कुछ की होने वाली है. सो दैट्स मीन कि हमारी जर्नी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है. और मेजॉरिटी जो है अब वो गामजन है जिनकी आर्टिकलशिप इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स स्टार्ट हो जाएगी बहुत सारे लोगों की इंशाल्लाह. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सी जैसा कि आपकी उम्मीदें हैं SBIL के साथ, उसी तरह से हम SBIL के प्लेटफॉर्म से हमारे तमाम ही टीचर खूब दिल जमई से मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे ये तमाम स्टूडेंट्स, इनमें से वो स्टूडेंट जो अपने अपने उन डेस्टिनेशंस जहाँ पे कि उनको CA की क्वालिफिकेशन लेना इतना आसान नहीं है, वो दूर कर सकें कि वो अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश कर सकें. माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारी भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो कि इस कॉस्टली किस्म की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारा एक ख्वाब ये भी है और कि हम सिलानी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह उनको इस काबिल कर सकें कि कल वो इस चीज़ को याद रखेंगे कि हाँ सिलानी ने हमें जो है अपने पाँव पे खड़ा होने पे खूब हमारी मदद की है. तो इंशाल्लाह फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ SBIL इंशाल्लाह सिलानी भरपूर कोशिश करेगा हमेशा की तरह से कि आपको अपने पाँव पे खड़ा कर सकें. जहां सिलानी एक तरफ एजुकेशन में IT के शोबे में टॉप क्लास किस्म की खिदमत फराहम कर रहा है पिछले साल से, वहीं दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा वो टॉप क्लास के कोर्सेज जो IT के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल डेटा साइंसेज है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन तमाम टॉप क्लास के कोर्सेज जिनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है इस वक्त. उसके साथ साथ इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे टॉप क्लास के कोर्स को भी सिलानी इस वक्त अपनी खदमात मुहैया कर रहा है. और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में जब आपको इंशाल्लाह सारे टीचर्स मैसर होंगे, जब आपको सारे के सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, आप देखेंगे कि आपको माशाल्लाह एक से बढ़कर एक टीचर आपको सिलानी प्लेटफॉर्म से मिलेगा इंशाल्लाह. अच्छा, जहां हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के उन तमाम दूर अफ्तादा इलाकों में जहां पे कि CA की क्वालिफिकेशन को पाना इतना आसान नहीं है, या हमारे स्टूडेंट जो गांव देहातों में रहते हैं या किसी ऐसे सिटीज में रहते हैं जहां से CA के सेंटर तक जाना बहुत मुश्किल होता है, हम उन तक भी अपना पैगाम पहुंचा सकें, अपनी एजुकेशन पहुंचा सकें. न सिर्फ उनके लिए बल्कि उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी जो कि इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो SBIL के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आएंगी माय डियर स्टूडेंट्स, जो वक्तन फवक्तन आपके साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है वो इंशाल्लाह आपको शेयर करती रहेंगी, जिसमें कि स्कॉलरशिप्स भी हैं और 100% स्कॉलरशिप तक अवेलेबल हैं. बस आपका काम है मेहनत करना और फिर देखिए इंशाल्लाह आप सिलानी के प्लेटफॉर्म से, SBIL के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होंगे. और इस काम के लिए जिस काम के लिए आपको स्कॉलरशिप की जरूरत पेश आए या आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की जरूरत पेश आए, तो उसके लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन साइड से मिस्टर हारिस हैं जो कि इन तमाम खदमात को मुहैया करेंगे और आपको इंशाल्लाह गाइडलाइंस देंगे.
वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी हम उनकी नॉलेज में भी ये चीज़ गोश गुजार कर दें, उनके इल्म में भी ये चीज़ ले आए कि सैलानी न सिर्फ आपको एजुकेशन के अंदर हेल्प करता है, बल्कि एजुकेशन के अंदर जो आने वाले तमाम जो मुश्किलात हैं, कहीं तो आपको पढ़ाने की हद तक है तो वो टीचर्स आपके साथ साथ आपके साथ साथ होंगे, हर स्टेप पे आपको साथ साथ लेके चलेंगे, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा इंशाल्लाह कि हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और जहाँ कहीं आपको फाइनेंशियल मसाइल का दरपेश हो, कहीं आप सही तरीके से अपनी फाइनेंशियली चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, उसमें हारिस उनको लीड कर रहे हैं, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये थोड़ा सा एक SBIL का भी एक जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको गोश्तगुजार किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और फिर आपको चूंकि पता है कि बदलता नया है दौर ये नए तकाजे इसके, नया है दौर ये नए तकाजे इसके, हमें अपने आप को बदलना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस नए दौर के नए तकाज़ों के लिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, चेंज लानी होगी और रियल तब्दीली लानी होगी, राइट। और ये तब्दीली है एजुकेशन के जरिए से, इल्म के जरिए से। और SBIL अपने प्लेटफॉर्म से इस इल्म के शऊर को, इस इल्म की आगही को बांटने में मसरूफ है। शबाना रोज सुबह शाम हम इस इल्म के सफर को हम जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इल्म के सफर को हमने जारी रखा हुआ है आपकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह। जहां सैलानी के लिए आप दुआएं करेंगे, वहां इसकी पूरी टीम के लिए, इसके असातिज़ा के लिए भी आपकी दुआएं हमें चाहिए, ताकि ये सफर जारी और सारी रहे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा एक आपका तारुफ हो गया, उससे पहले मेरा तारुफ हो गया, फिर आपसे कुछ बातें हो गई, आपके इंस्टीट्यूट का तारुफ हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं PRC1 का तारुफ करवाएं कि व्हाट इज PRC1। ऑलराइट, सो PRC1 को लेके चलते हैं हम कि PRC1 क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 5 कोर्सेज जो कि आपको CA के फर्स्ट मॉड्यूल में, PRC के मॉड्यूल में करनी है, राइट। इसके अंदर 5 पेपर्स हैं, PRC1, PRC2, PRC3, PRC4, PRC5। यानी आपको इसके अंदर सबसे पहला कोर्स है जो कि PRC1 है, जिसका टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके सामने है। इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग प्रोसेस को देखेंगे कि राइटिंग प्रोसेस किस तरह से होता है और हमने किस तरह से लेके चलना है। ये बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, BWCS शॉर्ट में कहते हैं। और इसे हम कंप्लीटली अगर कहेंगे तो बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है। जैसे कि इस सब्जेक्ट के नाम से जाहिर है माय डियर स्टूडेंट्स कि बिजनेस राइटिंग हमने आपसे यहाँ करवानी है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन जो अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे बता रहे थे अपने बारे में, और मैं आपको शायद याद होगा मैं आपसे पूछ रहा था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं, A लेवल्स करके ओ लेवल्स करके आए हैं, या वो कॉन्वेंट स्कूलों से आए हैं। 41 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड इंग्लिश का अच्छा है। अच्छा, होता ये है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके के बैकग्राउंड तो बहुत शानदार होता है, जिनका वो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से आए हुए होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो लैंग्वेज बैकग्राउंड है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। कई दफा ऐसा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने बारे में बहुत अच्छा सा फैसला कर सकते हैं। आप अपने बारे में बहुत अच्छी सी जो है वो अंदाजा रखते होंगे कि आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो जिनकी ग्रामर बहुत आला किस्म की है, या मीडियोकर किस्म की है, या ज्यादा अच्छी नहीं है। आप में से कितने लोगों की वोकैबुलरी किस तरह की है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि जो सोचते हैं, जो सोच सकते हैं, वो लिख भी सकते हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सी ग्रामर के ऊपर उनको अबूर हो, राइट। उनको पता हो कि जनाब हम किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, नाउन में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी के सारी जो डिफरेंस, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये बेसिक्स हैं। तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है जरा जरा कि हमने अपने बचपन में कभी किसी जमाने में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, हमने वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़ी थी, हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ी थी। ये सारा काम हमने क्लास 6, 7, 8 के अंदर किया था, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि वक्त के साथ साथ स्कूलों के अंदर उन चीजों पे शायद इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की जाती है, ज्यादातर स्कूल्स के अंदर रह जाते हैं।
ये वीकनेसेस आपको यहाँ दूर करनी होंगी, राइट। ओके शफी, आपको याद है, जरा जरा फाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी वीकनेसेस, अगर स्टिल आप यू फील कि यू आर वीक इन ग्रामर, यू अब जैसे कि पहला लेक्चर ही आपकी आती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले आपको पढ़ाए जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह वगैरह, राइट, एडजेक्टिव वगैरह। सो अब ये सब चीजें हम सिर्फ डेफिनेशन की हद तक याद करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमें डेफिनेशंस तो याद होती हैं। वी कैन आस्क टू एनीबॉडी, क्लास वन का भी कोई बच्चा छोटा सा उससे पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो वो आराम से सुना देगा, जो उसको मम्मा ने उसको याद करवाई हुई है डेफिनेशन कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फौरन से सुना देगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। लेकिन जब हम उससे पूछेंगे कि जनाब पर्सन के लिए किस तरह से यूज होगा, प्लेस के साथ किस तरह से यूज होगा, थिंग्स के लिए किस तरह से यूज होगा, नाउन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, राइट, एडजेक्टिव की टाइप्स कौन कौन सी हैं, डिग्रीज कौन कौन सी हैं इसकी, राइट, तो फिर वो बेचारे फंस जाएंगे। तो ये सब चीजें अगर आपके साथ भी हैं तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और जल्दी करनी होगी, ऑलराइट। अच्छा, इसमें इस सब्जेक्ट का कसूर कुछ नहीं है, इसमें अगर वीकनेस है आपकी पुरानी बैकग्राउंड की, तो इसमें इसका मतलब यह है कि वो आपकी अपनी वीकनेस है, आपको अपने तय मेहनत करनी है, राइट। ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट बहुत आसान है। सब्जेक्ट मुश्किल बनता है उस वक्त जब आपका बैकग्राउंड सामने नहीं आता। यू गॉट इट माय वर्ड्स माय डियर्स। जब आपका बैकग्राउंड वीक हो, उसके अंदर आपने वो चीजें जो कि क्लास 6, 7, 8 में होनी चाहिए थी वो कंप्लीटली आपकी कवर नहीं है, आपकी बेस सही नहीं है, स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर उस सूरत में यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, वो क्या खूब किसी ने कहा है कि मैं हूं ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप और हम दोनों मिल के इंशाल्लाह इस हर्डल को भी दूर करेंगे, ऑलराइट। माय डियर स्टूडेंट्स, आई कैप का ये कहना है कि हम किताब से बाहर, बुक से बाहर कुछ नहीं देते। को आई कैप चैलेंज करता है इस चीज को। आई कैप का कहना यह है कि हम जो पेपर बनाते हैं किताब में से बनाते हैं, बुक में से बनाते हैं, राइट। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको जितनी भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन बुक्स को घोल के पी जाएं, राइट। इनको इस तरीके से एक एक लाइन को पढ़ें, एक एक वर्ड को पढ़ें कि कोई चीज मिस ना हो जाए कहीं, कि राइट। तो इस तरह से हमने कवर किया, हमें really अंडरस्टैंडेबल हो। ओके फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होता यह है कि शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है हमें हल्का फुल्का, कि जिस चीज में आप वीक होते हैं समटाइम्स, तो आप होता है उसमें कि आप उसको समटाइम बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, right? लेकिन याद रखिए कि आपने जिस सफर का आगाज किया है, ये सफर बहुत आला किस्म का है, और इस जैसा करियर पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी नहीं है। इस वक्त माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त अगर कोई दो प्रोफेशंस, अगर कोई से दो प्रोफेशंस जो टॉप क्लास हैं वर्ल्ड वाइड, वो दो प्रोफेशंस कौन से हैं? नंबर वन, एक है फाइनेंस, नंबर टू एक है आईटी। सो आईटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर लीड कर रहे हैं। आपने चूज स्टूडेंट, जिसके अंदर आप ऑडिट भी पढ़ेंगे, टैक्स भी पढ़ेंगे, आपने आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आपने जाके ऑडिट भी करना है, फर्म्स को ऑडिट भी करना है आपने। कोई पीआईए के ऑडिट कर रहा होगा, कोई स्टेट बैंक के अंदर ऑडिट कर रहा होगा, कोई नेशनल बैंक के अंदर कर रहा होगा, कोई एंग्रो के अंदर कर रहा होगा, कोई यूनिलीवर के अंदर कर रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जाके आगे उन फर्म्स के ऑडिट करने हैं, और देखना है कि क्या उनका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है और उन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई है। ये सारा काम आपका होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑडिट देखना है, आप लोगों ने टैक्स को देखना है, आप लोगों ने फाइनेंस देखना है, छोटी सी जो काउंसलिंग है
इसलिए है कि वो तमाम लोग जो बुझे बुझे हुए दिल के साथ सम टाइम आते हैं कि देखते हैं, चल गए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वैसे भी हम तो फ्री में क्लासेस ले रहे हैं। उन तमाम लोगों को मेरा ये मैसेज है कि माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि हाफ हार्टेड, कभी भी हाफ हार्टेडली, ये नीम दिली, तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी ये देखते हैं, ये उमंग और तरंग आपके जज्बे की है, आपकी सोच की है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस उमंग और तरंग के साथ इस कोर्स को आगाज करते हैं, तो इंशाल्लाह द डे कम, you will accomplish your all targets, you will account it. Yes, students, क्या सोचते हैं, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा हो सकता है जिसकी लैंग्वेज वीक हो, जिसकी स्पीकिंग और राइटिंग वीक हो? क्या ये पॉसिबल है? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब इस चीज की, जब आपको पता है कि इस चीज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट लाइक आप हर हाल में आपको मेहनत करनी है, और ये जो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग है, दिस विल लीड यू टुवर्ड्स सक्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज पहली पहली क्लास है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आपको हो रहा हो। इंशाल्लाह विल मैनेज इट इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लासेस। आज तो वैसे भी इंट्रोडक्शन है आप लोगों का थोड़ा सा, और थोड़ा सा सेपरेट का इंट्रोडक्शन है। सो हो सकता है कि हमारे जो है वो कुछ वॉइस की प्रॉब्लम कुछ जगहों पे हो रहा हो, लेकिन इंशाल्लाह in the coming classes we'll manage all these things. All right. So my dear students, जिनको वॉइस का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो वो रिकॉर्डिंग भी बाद में सुन सकते हैं, राइट? वो वो आपकी रिकॉर्डिंग भी बाद में सुन सकते हैं। अच्छा, सो अबीर खान हैज रेज्ड द क्वेश्चन कि सब पेपर बुक से आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो बुक से तैयारी करेंगे हमारे साथ साथ, उनको हम बुक की तैयारी भी करवाएंगे, एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक जस्ट एक जनरल आइडिया दे दूं अपने कोर्स का, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने किस तरीके से इस कोर्स को लेके चलना है। ऑलराइट, okay. My dear students, here you can see that the first chapter is regarding the writing process, in which we study कि writing process के अंदर हमें क्या क्या करना होता है। हम इसके अंदर writing process को, उसकी डिटेल्स को देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम फिर बिजनेस मैसेजेस को देखेंगे कि हम correspondence के अंदर लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मेमोरेंडम राइटिंग को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, राइट? और इसके बाद फिर हम देखेंगे बिजनेस रिपोर्ट्स को कि हम राइट बिजनेस रिपोर्ट्स, then vocabulary and phrases, inshallah. In the coming phase we'll see vocabulary and phrases. My dear students, हम यहाँ पर आकर अपनी vocabulary को improve करने की कोशिश करेंगे। All right? My dear students, I think ये वेदर में कुछ वेदर भी चेंज हो गया है और हल्की फुल्की सी बारिश शुरू हो गई है कराची में। सो आई थिंक ये शायद वेदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम है सिग्नल्स के अंदर। आई एम रियली सॉरी कि यू पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टीज राइट नाउ। कराची में चूंकि अब थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है इस तरफ। ओके, आई लिव हियर एट कराची नियर मलिर कैंट, और मलिर कैंट और कराची एयरपोर्ट के करीब तरीन। तो यहाँ पर अब मौसम थोड़ा सा कुछ इस तरह का है कि यहाँ कुछ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसी वजह से, आई थिंक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम कनेक्ट कंटिन्यू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी के अंदर हम आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वोकैबुलरी का पोर्शन एग्जाम के अंदर 35 टू 40 फ्रेजेस, इडियम्स एग्जाम में आते हैं, इंशाल्लाह विल कवर इट। अब मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास वोकैबुलरी आती है। इसके बाद हम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग की तरफ जाएंगे, यानी एसे राइटिंग की तरफ जाएंगे। देन वी हैव रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी हमारे पास होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है जो कि हम लेके चलेंगे। हम आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ साथ हम आपको लेके चलते हैं कुछ और चीजों की तरफ, और कुछ और चीजें भी आपको दिखाएं जो कि आपके
Okay, Shahid Masturi. That's great. Wonderful. Sophia, just wait. I would like to discuss pattern of the paper. Wait. Question answer the question below. 80% answer the questions below. All right, my dear students, here you can see there will be one question. The first question that will be for the reading comprehension. A question the reading. All right, my dears. So you can see here on the screen के आपका first question है read the passage and answer the question और उसके सामने या उसके नीचे questions दिए of these four you have to click any one, right? So this will be the first question. Some people treat money as spiritual extension Okay, of their those lives. who are not understanding, if you face any problem, I'll show it again by next class, inshallah. Right? Those who are not able to come, so I'll show it again, inshallah, by next class. No worries at all. Impact लगता है क्योंकि I've changed the connection, but even then, here you can see. I would request everybody, please switch off your mics. Yes, my dears, क्योंकि आपके mics जब खुले होंगे ना तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी. फराज, would you please? Okay. Okay, my dear students. मेंशन का एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा और उसके साथ नीचे या साइड में हमें दिए हुए होंगे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. उसमें से एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, उसके आंसर्स हैं और आप उसके एक किसी आंसर्स को जो आप बेस्ट समझते होंगे, करेक्ट समझते होंगे, उसको क्लिक कर देंगे. ऑलराइट, ओके जी. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 1B की जानिब. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिस्ट डाउन 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक लेटर दिया गया है, राइट, और एक लिस्ट डाउन एंड 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज. इस पैसेज के अंदर 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हमें इसका टाइटल भी सजेस्ट करना है. ये एक हमें पैराग्राफ दिया गया है. इस पैराग्राफ के अंदर हमें इस पैराग्राफ के अंदर हमें 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चूज. ऑलराइट, सो बी है कि इसमें आपने इस पैराग्राफ में से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
को चुनना है, सिलेक्ट करना है जिसपे ये पैराग्राफ बेस करता है, और इस पैराग्राफ को टाइटल भी आपने देना है। ऑलराइट, इज दिस ओके माय डियर्स? हाँ यस, हम ये पेपर आपको बाद में ग्रुप पे शेयर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। एक आध क्लासेस के बाद जब पूरी क्लास की एक शेड्यूल बन जाएगा, एक टेम्पो बन जाएगा, हमारे स्टूडेंट सीरियस होना शुरू हो जाएंगी क्लास वाइज, यानी क्लास के साथ साथ हम आपको चीजें देना, शेयर करना शुरू कर देंगे। राइट, सारा मटेरियल एकदम से नहीं दिया जाता। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सीरियस बच्चे होते हैं, जो क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं, हम उनको वक्त के साथ साथ चीजें देते रहते हैं। उसके लिए हम बाकायदा एक ग्रुप बनेंगे, ठीक है? एक ग्रुप बनेगा और उसके ऊपर हम आपको चीजें शेयर करते रहेंगे। ऑलराइट माय डियर्स, सो फैजान, क्लास हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। क्लास हैज बीन स्टार्टेड, लेकिन सबसे पहले हम आपका पैटर्न ऑफ द पेपर डिस्कस कर रहे हैं पहली क्लास के अंदर। क्यों? इसलिए कि आपको कम से कम एक अंदाजा हो जाए कि पेपर आता किस तरह का है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमें पेपर पैटर्न का बताया जाए, इसलिए हम आपको अभी पेपर पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर को सॉल्व भी करेंगे बाद में हम। नहीं मुस्ता, इसमें बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं। अगर किसी का टाइटल डिफरेंट है, मेरा मुख्तलिफ है, आपका मुख्तलिफ है, तीसरे का मुख्तलिफ है, तो उसमें देखा यह जाता है कि वो कितना नियरेस्ट है, कितना नियरेस्ट है वो टाइटल। जितना अगर वो नियरेस्ट भी है तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट देंगे तो आपको मिलेगा मार्क्स, वरना नहीं मिलेंगे। राइट, इज दिस ओके? सो इसकी तकसीम मार्क्स इस तरह से होती है कि अगर 10 मार्क्स है तो उसमें से एक या दो मार्क्स सिर्फ टाइटे चलते। ओके जी, अब चलते हैं आगे। अब देखें, आप चूंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सब चीजें टाइप करनी होंगी, लिखनी नहीं होंगी। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइटल, ये देखिए टाइटल की जगह बनी हुई है, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे इसका। ठीक, इसके बाद 1 बाय 1 8 पॉइंट्स नीचे लिख देंगे। ये जगह कंप्यूटर की है, ये दी हुई है, कंप्यूटर के ऊपर ही दी हुई होती है। यहाँ पे टाइटल की जगह आप यहाँ टाइटल लिख देंगे, और नीचे 8 पॉइंट्स 1 बाय 1 आप एंटर करते चले जाएंगे, यहाँ स्पेस बढ़ता चला जाएगा, और इस तरीके से आप स्क्रीन पे ही उसको सॉल्व कर लेंगे। यस, एवरीथिंग यू नीड टू टाइप। आप लोगों को अपनी टाइपिंग को भी इंप्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी चीज रिटर्न नहीं होगी, किसी भी पेपर में कोई भी चीज रिटर्न नहीं होगी, हर चीज टाइपिंग बेस्ड है। इसलिए आपकी टाइपिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना तेजी से आपका अंगूठा चलता है ना मोबाइल के ऊपर, बस उसी तरह से आपको उतनी ही तेजी से प्रैक्टिस करनी है, और आपने अपनी 8 उंगलियां और 2 थम्स जो है वो चलाने हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। राइट, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको लैपटॉप्स मिलेंगे, और लैपटॉप्स पे आपको ये काम करना होगा। ऑल राइट, सो देयर विल बी, कोई मुश्किल नहीं होगी, यू डोंट वरी एट ऑल। पहले ही पेपर में आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि यार ये तो सब सेट है। ओके जी, सो हमने ये डिस्कस कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फिश बोन डायग्राम है जो हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि फिश बोन डायग्राम कैसे बनती है, फिश बोन डायग्राम का इस्तेमाल क्या है, हम इसकी ये राइटिंग प्रोसेस के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होती है, हम अपने आइडियाज जो जहन में आते हैं उनको पेपर पे आर्टिकुलेट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, फिश बोन डायग्राम हमें किस तरीके से टीच करती है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर। चैप्टर 1 थोड़ा सा लेंदी है, उसमें तमाम चीजें पढ़ेंगे। फिशबोन डायग्राम के बाद हम पढ़ेंगे एफिनिटी डायग्राम। ये एफिनिटी डायग्राम है आपके सामने। एफिनिटी डायग्राम का रोल क्या है राइटिंग प्रोसेस के अंदर, और हम किस किस तरीके से एफिनिटी डायग्राम बनाते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अपनी मतलब आने वाली क्लासेस के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर सिर्फ मैंने पेपर को डिस्कस करना है,
और पेपर को हम डिस्कस करने के बाद फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। अभी सिर्फ हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट पाकिज़ा, okay, my dear students, this portion, question number 3, is related with the synonym and antonyms, right? This related with the synonym and antonym. अब देखें इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर हो ये रहा है कि एक तरफ आपको ए लिस्ट दी गई है और एक तरफ बी। आपने करना क्या है, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है टास्क। अब सिनोनियम क्या है? सिनोनियम मींस सिमिलर वर्ड्स, और एंटोनियम क्या होता है? यानी कि अपोजिट वर्ड्स। तो सिनोनियम के अंदर आपने क्या करना है, ये सिनोनियम का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि here you can see कि for each word list A match the synonym from list B, कि आपने A लिस्ट के अंदर से जो B के अंदर मैच करते हैं, उसके सिमिलर वर्ड्स हैं, उससे उसको आपने लाइन मिलानी है, राइट? ऑलराइट, सो सिनोनियम्स जो है बेसिकली सिमिलर वर्ड्स को कहते हैं। अब देखें टास्क है, टास्क का सिमिलर क्या है? मैंने ग्रीन लाइन से जाके मिला दिया जॉब। टास्क कहें या जॉब कहें, बात तो सेम है ना। तो ये सिमिलर वर्ड्स हैं, इसको लाइनिंग करनी होगी, इनको मिलाना होगा। यस नैयर, यस यू आर राइट नैयर। तो इसी तरह से मैंने और देखा, और नीचे यहाँ पे देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखा मैंने, क्वेश्चन का सिमिलर वर्ड क्या है? वार्न। ये देखिए मैंने क्वेश्चन को वार्न से मिला दिया, राइट? राइट, तो ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। अब आप कोई सोचे कि ये मुश्किल काम है, तो फिर अल्लाह रहम करे। ये तो आप सोचें कि कितना मतलब कि इजी है, राइट? सो लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राइट? अभी तो आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, राइट? सो ये एक क्वेश्चन आ गया आपका सिनोनियम्स का, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है एंटोनियम्स का। ऑलराइट माय डियर्स, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है एंटोनियम्स का। तो इस तरह से आपके सिनोनियम, एंटोनियम, और एक आपका एसे राइटिंग होगा। एसे राइटिंग, एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन होंगे। सो दिस इज ऑन द पेपर। एक क्वेश्चन है आपका एफिनिटी डायग्राम। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका कोर्स, ये है आपका कोर्स। You got my words, my dears? Is this okay? Okay. So my dear students, here you can see कि पहला आपका राइटिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर मैं आपको एफिनिटी डायग्राम और फिश बोन डायग्राम पढ़ाऊंगा। एक डन क्वेश्चन है, एक डन क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, राइट? इज दिस ओके? 100 मार्क्स का पेपर है, और 100 में से आपका पहले पेपर में से, पहले चैप्टर में से एक डन क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद बिजनेस मैसेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, एक अदद आपको लेटर लिखना होगा, डन क्वेश्चन है, राइट? रिपोर्ट कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन हमें पढ़नी तो है, राइट? रिपोर्ट कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन हमें पढ़नी तो है। इसके बाद वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस, ये 35 to 40% मार्क्स हैं। यानी वोकैबुलरी के अंदर आपके पास इडियम्स भी आएंगे, फ्रेजेस भी आएंगे, और आपके सिनोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे। ऑलराइट, इज दिस ओके? और इसके बाद फिर आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, ये एसे से रेलेवेंट है, चैप्टर नंबर 5 एसे से रेलेवेंट है, इसमें से ऐसे आएगा, राइट? आर्गुमेंटेटिव राइटिंग ऐसे के ऊपर है, ऐसे आएगा, वी विल टेल यू इंशाल्लाह, राइट? इसके बाद एक क्वेश्चन होगा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके नीचे इसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टिक करना होगा उसके सही आंसर को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है टोटल पेपर। 100 मार्क्स का पेपर है, 50 पासिंग मार्क्स हैं। अब मुझे बताइए कि क्या कोई मुश्किल है, माय डियर्स? टेल मी ऑनेस्टली। अबीर खान, इसके अंदर जो पीआरसी 1 का पेपर है, इसके अंदर हमें एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और हमें राइटिंग भी करनी होगी। एमसीक्यूज हमें मिलेंगे लाइक पैराग्राफ, लाइक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मिलेंगे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
और इसके अलावा हमें वोकैबुलरी में भी कहीं कहीं हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन इसके अलावा हमें लिखना भी होगा, यहाँ एक लेटर लिखना होगा, एक अदद प्रेसी राइटिंग होगी और एक अदद हमारा जो है वो एसे होगा। सो इसका मतलब ये है कि ये पेपर एक कॉम्बिनेशन है जिसमें राइटिंग भी है, यानी कि राइटिंग से मुराद है कि आपने टाइपिंग करनी होगी, एसे भी टाइपिंग करना है, लेटर भी टाइपिंग करना है, प्रेसी भी टाइपिंग करनी है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपने वही स्क्रीन के ऊपर टिक मार्क करना है। ऑलराइट, इज दिस ऑल क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। All right, Tuba Ashraf, thank you. Tuba Ashraf Seth. All right. So, all right, Tuba Seth. So this is I have done. I have in detail. I have discussed the paper. I have discussed the outline, my dear students. And here we have a Q&A session. Your questions and my answers. अब है माइक आपकी तरफ और आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस और मैं दूंगा आपको आंसर्स। ऑल राइट। इंशाल्लाह अरीबा अरीबा का क्वेश्चन है कि सर ये सेशन हम कब तक एंड कर लेंगे? सितंबर तक का कह रही हैं। तो देखें, वैसे तो 6 मंथ्स का सेशन होता है, दिसंबर में आ जाइए, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल सी कि हम इसको 3 मंथ्स 3 to 3.5 months में क्लियर कर लेंगे। मे बी 3 मंथ्स में इंशाल्लाह हम PRC1 को क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। राइट, जुलाई हमारा समझने के एंड पे चल रहा है अब। सो अगस्त सितंबर, हाँ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जितना ज्यादा कोऑपरेट करेंगे, जितना एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि वन कैन नॉट क्लैप विद द सिंगल हैंड, कोई एक शख्स भी ताली एक हाथ से नहीं बजा सकता। ठीक है, तो हम फैकल्टी और आप स्टूडेंट्स मिल के एफर्ट्स करेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा तो हम फिर इस काबिल हो सकेंगे कि जल्द से जल्द इसको कर सकें। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मेरा जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 3 महीना समझ लें आप, 3 महीने के अंदर PRC1 एंड हो जाता है, अगर प्रॉपर क्लासें हो रही हो, उसमें कोई छुट्टियां वगैरह आ जाए। राइट, सो 3 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह PRC1 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। स्टूडेंट्स आप सब लोग मुख्तलिफ पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से हैं, वेलकम, खुश आमदीद टू ऑल ऑफ यू। जी आयानु वश के बखैर रागले और भली कर आयो, भली कर आयो। आई इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे जो हैं आप सब ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्लासेस को उर्दू प्लस इंग्लिश के अंदर लेके चलें। परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर हम आपको, हाँ खुदा दे आबाद उस्ताद सर, खुदा दे आबाद, खुदा दे आबाद, खुदा दे आबाद उस्ताद। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखें ये गुलदस्ता जो सजा है SBIL के प्लेटफॉर्म पे, जो सिलानी ने SBIL ने सजाया है, ये पूरे पाकिस्तान से सब मिले हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद करे। ये मुझे पश्तो में दुआ दी गई है, एंड आई कैन स्पीक माशाल्लाह माशाल्लाह ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, so you can talk in any language inshallah. I'll be answering you, right? I'll be answering you in every language almost. ईशा अभी तक तो चैनल नहीं है मेरा, लेकिन आप YouTube पे मेरे लेक्चर्स कुछ पढ़े हुए हैं पुराने, वो आप देख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि PRC1 और PRC5 को साथ लेके चलिएगा। मुझे किसी ने पूछा है कि सर 5 कोर्सेज लेके चलने हैं, तो 5 कोर्सेज को लेके चलना इतना आसान नहीं होगा। PRC1 और PRC5 दोनों के अंदर आपस में कुछ रिलेशनशिप है। PRC5 आसान हो जाती है अगर आप PRC1 साथ लेके चलते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप PRC1 और PRC5 को साथ साथ लेके चलें। PRC1 और PRC5 को साथ साथ लेके चलें, ये दोनों जो हैं वो माशाल्लाह से आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज की आपको प्रॉब्लम आएगी PRC5 के अंदर वो 1 के साथ साथ कवर हो जाएगी। राइट,
सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 5 पूरे के पूरे नहीं लेके चलें, आपकी मर्जी है, आप जो लेके चलना चाहते हैं वो लेके चलें। अगर 5 दे सकते हैं, स्टेमिना है, तो 5 ले लें। 4 ले सकते हैं तो 4 ले लें, 3 ले सकते हैं तो 3 ले लें। मैं आई डोंट रिकमेंड यू मोर देन 3 कोर्सेज। मैं 3 कोर्सेज से ज्यादा रिकमेंड नहीं करता एक वक्त में, राइट। सो 3 कोर्सेज मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा पेपर पे रुकते हैं, पेपर रुकते हैं। पता चला कि 5 के 5 ले लिए और 5 में गड़बड़ हो गई। इससे बेहतर है कि आप 3 लेके चलें। लेकिन अगर आपका स्टेमिना है और आप कर सकते हैं तो ठीक है, वाशत के, फिर तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, कीजिए उसको, राइट। फिर तो हार कदे आओ, फिर तो तुसी हार कदे आओ, राइट। सारे कोर्सेज पढ़े आप और सारे कोर्सेज आप फिर जो है वो कीजिए। हाँ, रिस्क है, यस मूसा रजा, यू आर राइट, ये रिस्क है, 5 कोर्सेज लेना रिस्क है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि पीआरसी 1 एंड पीआरसी 5 को साथ लेके चलिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है, खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, पीआरसी 1 और पीआरसी 5। ऑलराइट, इधर मैं उधर आप, राइट, उधर पीआरसी 1 उधर पीआरसी 5, तो खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो इंशाल्लाह दोनों पेपर एक एट वंस, एक ही झटके में, एक ही कोर्स में क्लियर हो जाएंगे, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट ईशा, मैंने वैसे YouTube चैनल मेरा वैसे बना हुआ नहीं है, वैसे मेरे YouTube पे मेरे पढ़े हुए हैं, कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन चैनल मैंने नहीं बनाया हुआ अभी तक, राइट। हाँ नहीं यार, यू आर राइट, नहीं यार, सेइंग कि सर जिंदगी में अगर रिस्क ना हो तो मजा नहीं आता। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। यू आर यंग, कोई बात नहीं, यंगस्टर्स रिस्क ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर एक आध गिर भी गया तो कह देंगे हम गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, राइट। सो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? माय डियर स्टूडेंट्स, हम चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, तो ये सकट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो कह रहे हैं कि जी सर वीक में कितनी क्लासें होंगी, तो वीक में हम पहले शुरू में 2 क्लासें लेके चलेंगे मेरे ख्याल में, इसके बाद फिर 3 हो जाएंगी, राइट। तो अभी शुरू में तो खैर आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे कि हम देख सकें कि हमारे साथ इस सफर में कौन कौन सीरियस है, कितने लोग आ रहे हैं रेगुलर, कितने लोग छोड़ रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि जी रेगुलर लोग अब हमारे साथ चल पड़े हैं और तैयारी शुरू हो गई है और हमारे काम उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं जो सीरियस हैं, तो फिर उसके बाद फिर हम धनाधन स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो शुरू के 15 दिन हम थोड़ा सा चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऑलराइट। हाँ चलेंगे तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, राइट। ओके ओके अमीन, ठीक है, अमीन साहब रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि सर शाम की क्लास, शाम की टाइमिंग रख लीजिएगा प्लीज। ओके, सॉरी अमीन, तो हमारी जो है वो तालिबा है। ओके अमीन, आई ट्राई, आप ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा कि सर हमारी पीआरसी 1 और पीआरसी 5 की क्लास जो है वो इवनिंग में लगवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पैगाम आप आगे तक पहुंच गया है। आगे आप जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प आउट कर देगी। मूसा रजा, बीकॉम करना जरूरी नहीं है सीए के साथ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस मरहले में बीकॉम की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। जब आपने सीए में एडमिशन लिया हुआ हो, एटलीस्ट आप सीए का पीआरसी पढ़ लीजिए, कम्युनिकेशन, बिजनेस, आईटीबी, ये सारे के सारे कोर्सेज, अकाउंटिंग और मैथ्स और स्टैट्स पढ़ लेंगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का आपको पढ़ाया जाएगा कि इसके बाद बीकॉम करते हुए आपको ट्यूशन की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसलिए आप पहले बीकॉम नहीं करें, पहले आप पीआरसी को क्लियर कर लीजिए। जब पीआरसी को क्लियर कर लीजिएगा तो बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, राइट। आप सारी चीजें यहाँ पर कवर कर चुके होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी आपको उसके अंदर, बीकॉम के अंदर। तो आई वुड रिकमेंड कि अभी आप बीकॉम मत कीजिए, आप बीकॉम कीजिएगा पीआरसी के बाद, पीआरसी क्वालिफाई कर लीजिए इसके बाद, ऑलराइट। क्लास शेड्यूल जो है वो हमारे हारिस भाई हैं, वो आपको वीकली शेड्यूल करेंगे। अभी चूंकि स्टार्ट है, हम भी इस सफर में आपके साथ ये देख रहे हैं कि हमारे साथ कितने बच्चे सीरियस हैं।
जो हमें ज्वाइन करेंगे मुस्तकिल, और जितने ज्वाइन करेंगे सीरियस होंगे, उसी हिसाब से हम फिर अपनी शेड्यूलिंग करेंगे। राइट, हम असल में पढ़ाने आए हैं उन स्टूडेंट्स को जो सीरियस हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। और राइट, तो हम उनके लिए हमतन गोश हैं, सुबह शाम हाजिर हैं उनके लिए। राइट, सो आपको कहीं में भी शिकवा शिकायत नहीं होगा, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप ऐसे सेटिस्फाई होंगे कि आप लोगों को रिकमेंड कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह के जनाब सिलानी के SBIL के प्लेटफॉर्म से आप CA कीजिए। आप इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो है यू विल बी मोर देन हैप्पी। तुबा अशरफ, ये थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन के सवालात हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि ये सारी चीजें आप पूछिएगा हारिस से। ठीक है, हारिस विल गाइड यू इंशाल्लाह कि गैप कितना ले सकते हैं, ये आपको हारिस गाइड कर देंगे इस बारे में। ठीक है, मुसर रजा बिल्कुल आप परेशान नहीं हो। देखिए, हमने आपको बीकॉम से मना तो नहीं किया है, ऐसा तो नहीं कि CA एक्सेप्ट नहीं होता, CA तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है, CA तो वर्ल्ड क्लास क्वालिफिकेशन है। ये पाकिस्तान की वाहिद क्वालिफिकेशन है जो दुनिया भर में चलती है, जिसकी दुनिया CA पाकिस्तान के अंदर आप 1.5 लाख रुपए मिनिमम लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं स्टार्ट, और कुछ ही अरसे में आप जो है ना पता नहीं लाखों में पहुंचे हुए होते हैं विद गाड़ी वाड़ी और तमाम फैसिलिटीज के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो CA एक स्पेशल जर्नी है, इसके अंदर इसका इंतखाब सिर्फ वही करते हैं जिनका जज्बा जुनून हो, हिम्मत जमा हो, और वो कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हो अपनी लाइफ के अंदर करियर बनाने के लिए। देखें, बीकॉम और MBA और MA तो सब करते हैं, लेकिन CA आपको बहुत कम मिलेंगे। पत्थर उठाएं तो आपको सैकड़ों BBA और MBA मिलेंगे, लेकिन आपको CA जो है ना वो गिने चुने कहीं ना कहीं मिलेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, CA जब आप होते हैं तो आपकी फैमिली में भी रेपुटेशन है, आपके खानदान में, आपके जहां उठते बैठते हैं वहां हर तरफ लोग आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से वेलकम करते हैं, और आपकी प्रॉपर्ली स्कैनिंग हो रही होती है, आपको सर से पांव तक देखा जा रहा होता है कि अच्छा ये CA है। तो CA इज अ डिफरेंट क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। CA एक स्पेशल किस्म का एरिया है, ये हर एक बच्चा इंतखाब नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो बहुत ही जज्बा जुनून वाले बच्चे होते हैं वो इसका इंतखाब करते हैं। राइट, नहीं मूसा रजा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और हम साथ साथ हैं, और इस तरह से हम साथ साथ इसको मेहनत करेंगे और आपको करवाएंगे मेहनत, और आप खुशी से अपने मैसेज हमें भेज रहे होंगे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड। ऑलराइट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, और सून इंशाल्लाह यू विल बी गिविंग गुड न्यूज टू अस। इंशाल्लाह आप जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, आप इनकी तरह से हमें पैगाम दे रहे होंगे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पहले तो नहीं है, सैलानी का ये 9th बैच है PRC का। इससे पहले AFC के हमारे पास भी 8-10 बैचेस AFC के हुए थे, क्योंकि PRC से पहले AFC हुआ करता था, CA का AFC हुआ करता था। राइट, so it's been long time we are teaching chartered accountancy. Right, all right my dears, any other questions? No Musa Reza, देखें, जिन्होंने CA किया है तो उनके भी सीन नहीं होते, वो आप जैसे और हमारे जैसे ही होते हैं। राइट, वो आप जैसे हमारे जैसे ही होते हैं। तो ये कहने की बातें हैं कि मुश्किल है, नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत जाया नहीं करता। All right my dears, any other questions? हाँ, ये सरीबा, आई टीच CAF 6 एज वेल। तो CAF 6 अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और मतलब मैं PRC के अलावा CAF 6 भी पढ़ाता हूँ। राइट, और अभी CAF 6 चल रहा है, और नया बैच स्टार्ट होगा हमारा एक महीने के बाद। अभी पुराना बैच चल रहा है, 1 महीने 1.5 महीने के बाद हमारा नया बैच स्टार्ट होगा CAF का। ठीक है, नो, अभी ये बिल्कुल गलत किस्म का परसेप्शन है। CA हॉट नीडेड है, हॉट डिमांड है CAs की वर्ल्ड वाइड। इसकी जॉब सबसे ज्यादा है। एक IT का प्रोफेशन और एक अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, फाइनेंस का प्रोफेशन हमेशा
आपको मिलता है। बिल्कुल फिक्र नहीं हो। देखिए नूर फातिमा लिख रही है आपको 99% जॉब मिलती है। मैं तो कहूंगा 99% नहीं, मैंने किसी सीईओ को फ्री घूमते हुए नहीं देखा है, 100% मिलती है। ऑलराइट, ऑलराइट माय डियर्स, ओके, इज दिस ओके माय डियर्स? सो विद दिस, अच्छा मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक दफा फिर पैटर्न पे मॉडल पेपर शो करूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मॉडल पेपर की जरूरत है अभी, या हम नेक्स्ट टाइम फिर इसको थोड़ा सा और मजीद डिस्कस कर लेंगे? हम आपको नेक्स्ट टाइम इसको मजीद दिखा देंगे, आप फिक्र नहीं करें। हाँ ईशा, हम दिखा देंगे आपको इसको अच्छी तरह से फिर दोबारा, राइट, क्योंकि एक दफा डिस्कस कर चुके हैं, बच्चे बोर होंगे। इंशाल्लाह फिर से दिखाएंगे। और कराची में जो है वो अब तेज शुरू हो चुकी। All right, my dear students. With this, I say you goodbye from the platform of SBIL. Inshallah, we'll see you next class. Till then, Allah Hafiz, goodbye, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pakistan Zindabad.